Good morning, students. Today our topic is Societal and Ethics, and it is Unit 4, and this is part 2 of this unit. And in this lecture, we are going to discuss some important concepts regarding to societal and ethics. First of all, cybercrime. What is cybercrime? According to the U.S. Department of Justice, cybercrimes divided into three basic categories. First one is crime in which the computing device is the target, for example, to gain network access. Second thing, crime in which the computer is used as a weapon, for example, to launch a denial of service attack. And third, crime in which the computer is used as an accessory to a crime, for example, using a computer to store illegally obtained data. So these are the three basic categories of a cybercrime, according to the US Department of Justice. Okay, so these are the different types of cybercrime. You can easily see on the screen that unauthorized use and hacking is a type of cybercrime. Web hijacking is also a cybercrime. Pornography, child sexual abuse, cyber stalking, software piracy, salami attack, service attack, virus attack, and phishing. In our last lecture, we already studied about the phishing concept of the phishing. So these all are the types of the cybercrimes, in which most of the I think in which most of you are the family of the most of the terms. So let us discuss about some terms one by one. First of all, phishing. I already explained this term in our last lecture, but let us take a quick revision of this term phishing. What is phishing? Phishing is the process of collecting your personal information through emails or website that claiming to be legitimate, and this information can include username, password, credit card numbers, social security numbers, etc. And oftentimes emails direct you to a website where you can update your personal information. And because these sites often look official, they hope you will be tricked into disclosing valuable information that you normally would not reveal, and this oftentimes result in identity theft and financial losses. I think now it is clear to all of you. तो क्या है फिशिंग? फिशिंग वो प्रोसेस है आपका जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू ले ली जाती हैं, और ये ईमेल या वेबसाइट ऐसा शो करती है कि ये लेजिटिमेट है, ठीक है, सही है ये। जैसे आपके पास कोई ईमेल आया और आपसे कहा गया कि हम बैंक से ये ईमेल आया और आप अपना बैंक नंबर, पिन कोड, डिटेल ये बता दीजिए आप अपना। देखने में वो ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअल में सही बैंक से है, लेकिन वो फेक होगा या वो फेक वेबसाइट होगी जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फिशिंग। और ये क्या है आपका? इट इज़ अ टाइप ऑफ द साइबर क्राइम। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी? वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे यहाँ पर आधार नंबर होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो। तो ये इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, और फिर उसके थ्रू हमें क्या होता है, उसके या तो हमें आइडेंटिटी थेफ्ट का सामना करना पड़ता है या फिर हमें फाइनेंशियल लॉसेस, तो हमें नुकसान हो सकते हैं इससे। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि ये ईमेल हमको ऐसी वेबसाइट पर डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं, हम ऐसी वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल जो वेबसाइट होती है, जो हम सोच रहे होते हैं वो वेबसाइट नहीं होती, वो फेक वेबसाइट होती है, और उसके थ्रू हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है, और उसके थ्रू हमें आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल लॉस का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिकॉज दिस साइट लुक वेरी ऑफिशियल, ये ऑफिशियल दिखती हैं, जैसी एक्चुअल साइट्स होती है उसी की तरह ये दिखती हैं। तो इसमें अक्सर जो लोग होते हैं फंस जाते हैं इसमें, और वो अपनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, पिन की डिटेल, अकाउंट से रिलेटेड पिन की डिटेल्स होती हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स होती हैं, तो वो अपनी जितनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सभी वो दे देते हैं इसके थ्रू। तो ये आपका फिशिंग कहलाता है, ठीक है। तो फिशिंग में इस तरीके से साइबर क्राइम का आज की डेट में ये काफ़ी कॉमन मेथड है, जिसके थ्रू अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को मांग लिया जाता है उनके थ्रू, ये दिखा के कि एक ईमेल आया है जो किसी बात के लिए क्लेम करता है। सपोज जैसे लॉटरी के लिए क्लेम किया कि आपकी लॉटरी लगी है, सपोज फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट 1 लाख और 2 लाख, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये दे दीजिए। आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके थ्रू आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं और चली जाती है,
और उसके थ्रू आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो जाता है। और ये ईमेल ऐसा लगता है कि आपको सही या सही है और ये सही वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वहाँ पर उस तरीके से इसमें लोग अपनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को दे देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फिशिंग का कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग फिशिंग की तरह ही है, और हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिमिलर है, पर देखते हैं स्पूफिंग किस तरीके से अलग है। एन अटैकर अल्टर्स हिज आइडेंटिटी सो दैट समवन थिंक ही इज़ समवन एल्स। इसमें जो अटैकर होगा वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेगा, और चेंज करने के बाद वो दूसरे को इस तरीके से दिखाएगा कि वो कोई और पर्सन है, मतलब वह वही है, दैट समवन थिंग ही इज़ समवन एल्स, दैट कि वो कोई और है आपका। और ये 3 तरीके से करता है वो, ईमेल के थ्रू, यूज़र आईडी के थ्रू और आईपी एड्रेस के थ्रू। तो अटैकर एक्सप्लॉइट ट्रस्ट रिलेशन बिटवीन द यूज़र एंड द नेटवर्क मशीन टू गेन एक्सेस टू द मशीन। तो अटैकर इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी को बदल देता है और दूसरे के सामने किसी और आइडेंटिटी के साथ, किसी और नेम के साथ वो अपीयर होता है। तो इसको स्पूफिंग बोला जाता है। ऐसे 3 तरीके से किया जा सकता है, आईपी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और वेब स्पूफिंग। तो इसके थ्रू जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि अटैकर एक्सप्लॉइट द ट्रस्ट रिलेशन बिटवीन द यूज़र एंड द नेटवर्क मशीन। तो जो भरोसा होता है यूज़र का और नेटवर्क मशीन के बीच में, उस भरोसे को, उस ट्रस्ट को वो ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट आता है फार्मिंग। ये भी आपका एक साइबर क्राइम है, और ये एडवांस टेक्निक है। जहाँ तक हम फिशिंग की कंपैरिजन करें तो फिशिंग के कंपैरिजन में ये और ज़्यादा एडवांस टेक्निक है। तो फार्मिंग इज़ अ मोर एडवांस टेक्निक टू गेट द यूज़र क्रेडेंशियल्स बाय मेकिंग एफर्ट टू एंटरिंग यूज़र इनटू वेबसाइट, and in order it misdirect user to a fake website that appears to be official, and victims give their personal information by fraud. In farming, fake website is created which appears to be official, and users then access the website and request is popped up regarding username and password and other credentials. देखिए, फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है फिशिंग के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, बल्कि ये हम ये कहें कि थोड़ा एडवांस वर्जन है ये इसका। इसमें आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं जाएगी, इसमें आपसे आपको एक फेक वेबसाइट की तरफ भेज दिया जाएगा, और जो फेक वेबसाइट होगी वो ऐसी वेबसाइट होगी जो आपको ये लगेगा कि ये ओरिजिनल वेबसाइट ही है। जैसे किसी बैंक की वेबसाइट हो गई, सपोज किसी बैंक की वेबसाइट हो गई, जैसे एसबीआई की, पीएनबी की, तो देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये आपका एक्चुअल वेबसाइट है उस बैंक की, लेकिन वो एक्चुअल वेबसाइट नहीं होगी, वो फेक वेबसाइट होगी, और वहाँ पर आप अपनी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट नंबर क्या है, पिन डिटेल क्या है, इस तरीके से आप दे देंगे। फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग में यूज़र अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है फार्मिंग के अंदर आपसे। तो कभी भी ये भी कहा जाता है कि आप किसी लिंक पर क्लिक मत कीजिए जो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा हो। अगर आपको किसी बैंक की वेबसाइट को ओपन भी करना है तो डायरेक्ट जाके आप यूआरएल उसका टाइप कीजिए वेब ब्राउज़र में, और फिर उसको ओपन कीजिए, ना कि ये कि आपने किसी भी लिंक पर क्लिक कर दिया और वो वेबसाइट खुल गई। तो अक्सर ऐसा क्या होता है, वो फार्मिंग होता है, फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। वहाँ पर एक वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ फिर हम अपनी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो दे देते हैं, और उसके थ्रू साइबर क्राइम आपका हो जाता है। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के थ्रू आपने दे दी तो। नेक्स्ट है इलीगल डाउनलोड एंड द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दीज tools are also considered as a cyber crime. So illegal downloading refers to the obtaining file for which you don't have the right to user to download from the internet. देखिए, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसके पास आपके पास राइट नहीं होता कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकें, तो फिर भी कुछ ट्रिक्स की हेल्प से डाउनलोड कर ली जाती हैं। तो इलीगल अगर हम कुछ डेटा डाउनलोड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एक साइबर क्राइम ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज डिफाइंड एज एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग इमेज, मूवी और टेक्स्ट that depicts or advocates sexual activity, including sexual molestation or exploitation of anyone under the age of 18। तो किसी भी पर्सन जिसकी उम्र आपकी 18 ईयर से कम है, उसका मॉलिस्टेशन या एक्सप्लॉइटेशन करना, सेक्सुअली मॉलिस्टेशन या एक्सप्लॉइटेशन करना आपका विजुअल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में, आपका इमेज या मूवीज़ के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू इंटरनेट पर, ये आपका साइबर क्राइम माना जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन पिनल कोड 1860 में ये आपका इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ये भी आपका साइबर क्राइम कंसीडर किया जाता है आपका। तो ये लीगल डाउनलोड चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आपकी साइबर क्राइम हो गई। नेक्स्ट आते हैं साइबर बुलिंग।
So cyberbullying is the use of digital communication tools such as the internet and cell phone to make another person feel angry, sad, scared, usually again and again. An example of cyberbullying include sending hurtful texts or instant messaging, posting embarrassing photos or videos on social media, and spreading mean rumors online or with cell phones. साइबर बुलिंग का मतलब आप क्लियर हो गया होगा आई थिंक. अभी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, चलिए फिर भी बताते हैं हम. देखिए साइबर बुलिंग आपका डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू होता है. वो डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स की जब हम बात करते हैं तो या तो वो इंटरनेट हो सकता है या वो सेल फोन हो सकता है, जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को आप डिजिटली मतलब इंटरनेट के थ्रू या सेल फोन के थ्रू आप उसको गुस्सा दिलाएं या उसको दुखी कर दें, उसको डरा दें और ऐसा बार बार करें, हर बार करें, ठीक है, उसे परेशान करें, तो ये साइबर बुलिंग की एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है. और साइबर बुलिंग में ये अब क्या करते हैं कि जैसे हर्टफुल टेक्स्ट भेजते हैं, उसे ऐसे टेक्स्ट भेजते हैं जिससे पढ़ के उसको बुरा लगेगा, या हम कुछ ऐसे इंस्टेंट मैसेजेस भेजते हैं जिससे उसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन से फील होगी, ठीक है, या हम कुछ ऐसे फ़ोटोज़ भेजते हैं उसको, या सोशल मीडिया साइट पर हम कुछ ऐसे वीडियोस डाल देते हैं तो उससे, या फिर उसके बारे में कुछ ऐसे रीमर्स फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, और या फिर हम सेल फोन्स के थ्रू उसका नंबर मतलब सोशल मीडिया साइट पर नंबर डाल देते हैं हम उसका, तो डिफरेंट पर्सन से कॉल करते हैं. तो ये सभी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आ जाएगा. तो साइबर बुलिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशंस टूल्स के थ्रू जैसे इंटरनेट के थ्रू या सेल फोन के थ्रू किसी भी पर्सन को बहुत हद तक परेशान किया जाए, उसे गुस्सा दिलाया जाए, उसे डराया जाए, उसे दुखी किया जाए, ठीक है, और बार बार किया जाए, हर बार किया जाए. और ऐसा हम कैसे करेंगे? उसे हर्टफुल टेक्स्ट भेजेंगे, मैसेजेस भेजेंगे, एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ को पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया साइट्स पर, और उसके बारे में जो मीन रीमर्स होंगे वो फैलाएंगे ऑनलाइन में सेल फोन से थ्रू. तो ये आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है. आपका ये आपका क्राइम साइबर बुलिंग कहलाएगा. और साइबर बुलिंग इज बुलिंग दैट टेक्स प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइस लाइक सेल फोन, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स. पहला तो पॉइंट इसका ये है कि साइबर बुलिंग जो होगा आपका ये एक बुलिंग है और ये डिजिटल डिवाइसेस सेल फोन, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट है ये है कि सेकंड पॉइंट, साइबर बुलिंग कैन अकर थ्रू एसएमएस, टेक्स्ट एंड एप्स और ऑनलाइन इन सोशल मीडिया फोरम्स और गेमिंग वेयर पीपल कैन व्यू, पार्टिसिपेट इन और शेयर कंटेंट. तो साइबर बुलिंग कहाँ होता है? साइबर बुलिंग में पहले तो ये एसएमएस के थ्रू होता है, टेक्स्ट के थ्रू होता है, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू होता है, जैसे फेसबुक के थ्रू हो गया आपका, या कुछ ऐप्स होती हैं, कुछ फोरम्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन गेमिंग होते हैं जहाँ लोग आपको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ आप अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, वहाँ ये साइबर बुलिंग होता है आपका. नेक्स्ट है आपका साइबर बुलिंग इंक्लूड सेट. अब साइबर बुलिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा ये समझने वाली बात है. तो पहला तो ये कि साइबर बुलिंग किसके थ्रू होता है, तो किसके थ्रू की बात है, ये डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू होगा, सेल फोन के थ्रू होगा, कंप्यूटर के थ्रू होगा, टैबलेट के थ्रू होगा, ठीक है. सेकंड है ये आप कहाँ कहाँ होगा, ये एसएमएस के थ्रू हो सकता है, टेक्स्ट के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट फोरम्स के थ्रू, डिफरेंट गेमिंग के थ्रू, जहाँ लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, वहाँ हर जगह ये साइबर बुलिंग होता है. नेक्स्ट, इसमें करते क्या है, साइबर बुलिंग में इंक्लूड क्या होता है, इसमें हम इंक्लूड होता है सेंडिंग, पोस्टिंग, शेयरिंग ऑफ नेगेटिव एंड हार्मफुल और फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स. किसी के बारे में भी अगर हम कुछ ऐसा डेटा सेंड करते हैं या पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं जो काफ़ी नेगेटिव हो, जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो, हार्म पहुंचा सकता हो, दुखी कर सकता हो, जो फेक हो या बहुत ही मीन कंटेंट हो, ठीक है, किसी के बारे में, तो ये साइबर बुलिंग के अंदर इंक्लूड होता है आपका. नेक्स्ट है इट कैन इंक्लूड sharing personal or private information about someone else causing embarrassment or the humiliation. Some cyberbullying crosses the line into unlawful and criminal behavior. लास्ट पॉइंट इसका, इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. इसके थ्रू साइबर बुलिंग के थ्रू हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोटोज़ या डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होगा खैर, हम इसकी कॉन्टैक्ट नंबर हमने किसी का सेंड कर दिया किसी और नेम से, ठीक है, और उसी के थ्रू क्या होगा, उसे काफ़ी एम्बैरस फील होगा और ह्यूमिलेशन होगा. मान लीजिए कोई पर्सन किसी को आपने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ऑनलाइन डाल दिया किसी सोशल मीडिया साइट पर किसी और आइडेंटिटी के थ्रू, किसी और पर्पस के लिए थ्रू, तो वो उसको परेशान कर सकता है, कोई भी उसे कॉल करके परेशान कर सकता है. तो इसमें एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है. तो कहीं कहीं तो साइबर क्राइम में साइबर बुलिंग को अक्सर तो साइबर क्राइम के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन कुछ साइबर बुलिंग इतनी सीरियस होते हैं कि उनको अनलॉफुल भी माना जाता है और क्रिमिनल बिहेवियर एक्टिविटी के अंदर भी कंसीडर किया जाता है. तो ये भी एक फैक्ट है इसके अंदर.
तो यही पॉइंट था। इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन एल्स, किसी की पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना बिना उसकी परमिशन के, जो उसको एम्बेरस फील कराए और जो उसके लिए जो ह्यूमिलेशन का वजह बने, तो ये आपका साइबर बुलिंग कहलाएगा। द मोस्ट कॉमन प्लेसेस वेयर साइबर बुलिंग अकर्स, तो कहाँ कहाँ साइबर बुलिंग होता है? सबसे पहले सोशल मीडिया साइट्स पर सबसे ज़्यादा होता है, तो सच एज द फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सभी सोशल मीडिया साइट्स हैं। टिकटॉक तो अब नहीं है खैर यहाँ पर। तो ये सभी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट मैसेजिंग एंड मैसेजिंग ऐप्स ऑन मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस। तो कुछ टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप्स आती हैं जिसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं और बल्क में कर सकते हैं। तो वहाँ भी ये साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। थर्ड है इंस्टेंट मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग ओवर द इंटरनेट। आप किसी को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या तभी के तभी ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम चैट बोलते हैं, ऑनलाइन चैट बोलते हैं। तो ऑनलाइन चैट के थ्रू भी ये किया जा सकता है। कोई पर्सन आपसे चैट कर रहा है, वो आपके लिए कुछ इस तरह की एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी में कंसिडर किया जा सके। नेक्स्ट है ऑनलाइन फोरम्स, चैट रूम्स, मैसेज बोर्ड्स सच एज रेडिट, ईमेल्स, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़। तो ये कुछ चैट रूम्स होते हैं जहाँ पर भी साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट होता है आपका। मैसेज बोर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे रेडिट है। और कुछ ऑनलाइन फोरम्स होते हैं जहाँ अपने लोग अपनी बातों को रखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वहाँ भी ये साइबर बुलिंग होता है आपका। ईमेल के थ्रू भी हो सकता है और ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ के थ्रू भी हो सकता है। कुछ गेमिंग कम्युनिटीज़ होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, जहाँ लोग ऑनलाइन आके गेम खेलते हैं। तो किसी के बारे में भी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो इसको एम्बेरस फील कराएं, ह्यूमिलेशन हो जिसका, जिससे किसी भी पर्सन का, तो वहाँ पर वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ होता है। तो बेसिकली तो यही है कि सोशल मीडिया साइट्स पर होता है, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग जहाँ होती है, चैट, ऑनलाइन चैट होता है, या ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, यहाँ सभी ये साइबर बुलिंग होता है आपका। तो साइबर बुलिंग आई थिंक अभी सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग को ऑनलाइन स्टॉकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व द रिपीटेड यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू हैरेस, इंटिमिडेट और फ्राइटन अ पर्सन और अ ग्रुप। तो इसमें क्या है, इसमें रिपीटेड यूज़ होगा किसका, इंटरनेट का या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, जिसके थ्रू हम मैसेज भेज सकते हैं और इसके थ्रू किसी को हैरेस, इंटिमिडेट या डराया धमकाया जा सकता है, फ्राइटन किया जा सकता है, किसी भी एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम इन विच द अटैकर हैरेस अ विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज द ईमेल और द इंस्टेंट मैसेजिंग और मैसेजेस पोस्टेड टू द वेबसाइट और अ डिस्कशन ग्रुप। साइबर स्टॉकिंग पहली बात तो एक क्राइम है विदाउट एनी हेजिटेशन। साइबर बुलिंग के अंदर तो ये था कि साइबर बुलिंग कुछ एक्टिविटीज़ को अनलॉफुल माना जा सकता है, सभी को नहीं। लेकिन साइबर स्टॉकिंग विदाउट एनी हेजिटेशन हम कह सकते हैं कि ये एक साइबर क्राइम है, जिसमें आपका जो अटैकर होता है विक्टिम को हैरेस करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। और वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होंगे, ईमेल होगा या इंस्टेंट मैसेज होंगे, या कुछ ऐसा होगा कि मैसेज पोस्ट किए जाएंगे किसी वेबसाइट पर या किसी डिस्कशन ग्रुप पर। तो cyber stalking message differ from ordinary spam in that cyber stalker target a specific victim with often threatening message, while the spammer target a multitude of recipient with simply annoying messages. और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि ये साइबर स्टॉकिंग जो मैसेजेस होते हैं ये स्पैम से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो स्पैम में जो हम मैसेज भेजते हैं या कोई भी कंपनी मैसेज भेजती है तो नंबर ऑफ़ पीपल्स को भेजती है, काफ़ी इसके अंदर रिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसके अंदर एनोइंग मैसेजेस होते हैं जो आपको परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब आपकी ये है कि आपको गैर ज़रूरी लगे, लेकिन वो अनलॉफुल नहीं हो सकते। लेकिन साइबर स्टॉकिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। साइबर स्टॉकिंग पहली बात तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक विक्टिम होगा, उसको टारगेट किया जाता है, ठीक है, और उसको इस तरह से मैसेज दिए जाते हैं कि उसे डराया जा सके, धमकाया जा सके और उसे परेशान किया जा सके। तो ये आपका साइबर स्टॉकिंग कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आया है आपका व्हाट इज़ क्राउड सोर्सिंग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्राउड सोर्सिंग, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्राउड सोर्सिंग इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग सर्विस आइडियाज एंड कंटेंट थ्रू द contribution of the large group of people. First point, crowdsourcing involves obtaining work, information, or opinion from a large group of people who submit their data via the internet, social media, and the smartphone apps. Third point, people involved in crowdsourcing sometimes work as a paid freelancers while others perform a small task on a
voluntary basis. For example, traffic apps encourage drivers to report accidents and other roadways accidents to provide real-time update information to apps user. देखिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्राउड सोर्सिंग क्या है। तो जैसे बता रहे हैं, इससे फर्स्ट तो वर्ड ही आपको आइडिया दे रहा होगा, क्राउड सोर्सिंग। तो क्राउड सोर्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम आइडियाज़ को, कंटेंट को, सर्विसेज को कलेक्ट करते हैं। किसके थ्रू? क्राउड के थ्रू। और जब क्राउड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू हम आइडियाज़ को, सर्विसेज को और कंटेंट को कलेक्ट करते हैं। तो इसको हम क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग वर्क, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर कोई काम हो सकता है, एनी वर्क, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या डिफरेंट पर्सनस का ओपिनियन हो सकता है जिसको हम लोगों से सबमिट कराते हैं। और सबमिट किसके थ्रू कराएंगे? इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या स्मार्टफोन में जो ऐप्स आती हैं उनके थ्रू। हम डिफरेंट पर्सनस के ओपिनियंस लेते हैं, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या फिर उनके थ्रू कोई वर्क को सबमिट कराते हैं। तो एट द सेम टाइम तो उसको हम क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं। तो जो पर्सन वर्क करते हैं, पीपल इन्वॉल्व इन द क्राउड सोर्सिंग समटाइम वर्क एज ए पेड फ्रीलांसर्स वाइल अदर परफॉर्म सम टास्क ऑन द वॉलंटरी बेसिस। तो कुछ पेड फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ वॉलंटरी बेसिस पर इसमें काम करते हैं। जैसे कुछ ट्रैफिक ऐप्स होते हैं जो लोगों को या ड्राइवर्स को इनकरेज करते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी रिपोर्ट करें, या कोई रोडवेज का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बारे में रियल टाइम अपडेट दें। तो वहाँ इस तरीके से ये क्राउड सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्मार्ट मूव्स। So smart mob is an organized group of people who have gathered through the use of social media to protest or lobby for a publicized social or political causes. And using social media, anyone can organize a smart mob by deciding about the goal, deciding about the event size, place, date, and time, and forming a short digital message informing people about it, and finally sending this message through the use of social media to the target group of people. स्मार्ट मोब्स का मतलब भीड़ होता है, और स्मार्ट मोब का मीनिंग यहाँ पर होगा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल। ठीक है, वो पीपल हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और किसके थ्रू ऑर्गेनाइज्ड होंगे? वो सोशल मीडिया के थ्रू होंगे, जो किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी जो सोशल या पॉलिटिकल कॉज के ऊपर हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा कि अभी ये आपका एनसीआर के ऊपर, या ये सब अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, तो ये आपका एक एग्जाम्पल था स्मार्ट मूव के। इसमें क्या था कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को कनेक्ट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आपको यहाँ मिलना है और इसके लिए प्रोटेस्ट करना है। तो लोग आते हैं वहाँ पर और अपनी बात को रखते हैं। तो इसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो भी पर्सन्स होते हैं वो सभी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड्स को चलाना जानते हैं, इसकी ऐप्स को यूज़ करना जानते हैं, मैसेज को सेंड फॉरवर्ड करना जानते हैं, इसलिए उनको स्मार्ट मोब्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ग्रुप बने हुए होते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए होते हैं, और वहाँ वो मैसेज सेंड करके किसी भी सोशल या किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपनी बात को रख सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं कहीं भी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये है कि उनको गोल का पता होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है आपका इसके अंदर सबसे पहले डिसाइडिंग अबाउट द गोल का पता होना चाहिए। डिसाइडिंग अबाउट द इवेंट साइज, प्लेस, डेट एंड टाइम, तो उनको पता होना चाहिए कि इवेंट का क्या साइज़ है, प्लेस का है, डेट क्या है और टाइम क्या है जहाँ उनको ये सब कुछ करना है। एंड देन फॉर्मिंग अ शॉर्ट डिजिटल मैसेज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट इट। उसके बाद उनको एक छोटा सा एक डिजिटल मैसेज तैयार करना होगा जिससे लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, और फाइनली वो मैसेज को सेंड कर देते हैं। जैसे अभी आपका शाहीन बाग में हुआ, तो वो स्मार्ट मोब का एक एग्जाम्पल था जिसमें अलग अलग पीपल्स प्रोटेस्ट करना हुआ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और लॉ के अगेंस्ट, एनआरसी के अगेंस्ट। तो ये आपका स्मार्ट मोब्स कहलाता है। तो स्मार्ट मोब्स में आपके जो पीपल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और उनको एक ग्रुप की फॉर्म में बताया जाता है। और वो आप उसमें सबसे पहले गोल डिसाइड होता है। गोल डिसाइड होने के बाद उसमें ये पता लगाते हैं कि हम प्रोटेस्ट कहाँ करना है, इवेंट क्या करना है, इवेंट का साइज़ कितना होगा, जगह क्या होगी, प्लेस क्या होगा। उसके बाद एक मैसेज टाइप करते हैं, उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप में। तो जो भीड़ होती है, ठीक है, या जो लोग होते हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, वो उस समय एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको स्मार्ट मोब बोला जाता है। नेक्स्ट है नेट न्यूट्रलिटी। Net neutrality refers to the principle implemented to show that the ISP enables access to all sites, their content, and
applications regardless of the source without favoring or blocking particular content, products, or website. With net neutrality, an internet service provider must ensure that it provides access to all sites in the same way. It loads the content and applicants of sites and web applications at the same speed, and all content get loaded under the same condition without blocking or giving preference to any content. जैसा कि वर्ड है नेट न्यूट्रलिटी, तो आई थिंक बड़ा क्लियर वर्ड है नेट न्यूट्रलिटी। देखिए, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जियो हो गया या एयरटेल हो गया। तो आपने देखा होगा कुछ साइट्स तो काफ़ी स्लो चलती हैं, कुछ साइट्स आपका काफ़ी फास्ट एक्सेस आप कर सकते हैं उसका। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूज़र है, कस्टमर है, उसके लिए जितना भी कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है उनके लिए सेम आपका कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए, मतलब सेम स्पीड होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई साइट तो ब्लॉक हो, कोई साइट ओपन ना हो, या ओपन हो तो काफ़ी स्लो ओपन हो। तो इसे नेट न्यूट्रलिटी बोला जाता है कि कहीं किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई भी जो भी कंटेंट अवेलेबल है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो अपने कस्टमर्स हैं उनको वो जो डेटा दे रहे हैं, डेटा सर्विस दे रहे हैं, वो डेटा सर्विस में आपस में कोई उसमें कोई भी भेदभाव ना हो, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि उसमें ऐसा ना हो कि कुछ कंटेंट को तो हम ओपन ही नहीं कर पा रहे, या कुछ कंटेंट को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, या एक्सेस कर पा रहे हैं तो काफ़ी वो स्लो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल नेट न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करना। इसलिए इसे नेट न्यूट्रलिटी बोलते हैं कि कभी हमें न्यूट्रल रहना है, ठीक है। जितना भी कंटेंट अवेलेबल है सबके लिए न्यूट्रल रहना, सबको एक जैसा एक्सेस देना है, तो इसे नेट न्यूट्रलिटी बोला जाता है। किसी को फेवर नहीं करना, किसी भी कंटेंट को ब्लॉक नहीं करना, या किसी भी प्रोडक्ट या वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करना, तो ये नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। तो नेट न्यूट्रलिटी में आपको ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं आईएसपी, ये इनको इंश्योर करना होता है कि वो सभी साइट्स का एक्सेस सही सेम वे से दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ को तो अलग तरीके से दे पा रहे हैं एक्सेस, कुछ को सेकंड अदर किसी मेथड के थ्रू दे पा रहे हैं। तो सबका मेथड एक ही होना चाहिए, मेथड वे एक ही होना चाहिए। सेकंड है, इट लोड्स द कंटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द साइट एंड वेब एप्लीकेशन एट द सेम स्पीड। तो स्पीड सभी के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ के लिए स्पीड कम है, कुछ के लिए स्पीड ज़्यादा है, कुछ वेबसाइट और कुछ कंटेंट के लिए स्पीड कम है, कुछ के लिए ज़्यादा वेरी कर रही, वेरी नहीं होनी चाहिए। थर्ड है, ऑल कंटेंट गेट लोडेड अंडर द सेम कंडीशन विदाउट ब्लॉकिंग और गिविंग प्रीफरेंस टू एनी कंटेंट। अब इसमें ना तो आप किसी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, ना ही किसी कंटेंट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। सभी को सेम प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, शॉर्ट नोट्स आता है अक्सर इसके ऊपर लिखने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट एडिक्शन। तो वर्ड ही बता रहा है, आई थिंक कुछ इसके अंदर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, चलिए, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो बताना पड़ेगा। When a person cannot find a balance between their time online and their time offline, it is considerably affected their mental health, and this condition is called the internet addiction, the internet addiction disorder. तो इंटरनेट एडिक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर बोला जाता है। तो जो पर्सन ऑनलाइन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कभी कभी जो अपनी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना भूल जाते हैं, या उनकी जो लाइफ होती है उसके थ्रू आपका काफ़ी अफेक्ट करती है। तो इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है। यानी आप सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में खोए हो, आप ऑनलाइन खोए हो अपने फेसबुक पर, अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर, अपने व्हाट्सअप मैसेजेस पर, और आपको पता ही नहीं है कि घर में आपके क्या चल रहा है, पड़ोस में आपके क्या चल रहा है, या कुछ काम भी करना है नहीं करना है, अपना कुछ काम करना है नहीं करना है। तो उसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी बोला जाता है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो ये भी एक पॉइंट है इसके साथ। तो डेफिनेशन सिंपल से है, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट फाइंड ए बैलेंस, जब कोई पर्सन ये बैलेंस नहीं बना पाता है अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के बीच में और जो टाइम ऑफलाइन देता है उसके बीच में, तो बैलेंस ही नहीं है उसका। तो ये इससे क्या होगा, इसकी मेंटल इफेक्ट जो होगी वो इफेक्ट करती है, और इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है। अब इंटरनेट एडिक्शन कब होता है, मैनी पर्सन कैन नॉट फाइंड ए बैलेंस बिटवीन द टाइम एंड द ऑनलाइन। ओके, ये डेफिनेशन हो चुकी है। हाँ, तो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सेसिव सोशल नेटवर्किंग, आप हद से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर रहे हो, दिन भर फेसबुक ही करते रहते हो, कुछ नहीं। एक्सेसिव ब्लॉगिंग, ब्लॉग लिखते रहते हो ज़रूरत से ज़्यादा। ऑनलाइन गैमलिंग करते रहते हो, ठीक है। और वो गैमलिंग भी ऐसा कि आपको आदत है कि करनी ही करनी है आपको, उसके बिना आप पर रहा ही नहीं जाएगा। एक्सेसिव ऑनलाइन शॉपिंग, आपको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ चुकी है, आपको कुछ ना कुछ ऑनलाइन परचेज ही करना है, हमेशा करना है, ज़रूरत है नहीं है, करना है बस।
कंपलसरी वॉचिंग ऑफ इंटरनेट वीडियोज़ एंड पोर्नोग्राफी, आपको इंटरनेट पर वीडियो देखने ही देखने हैं, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने ही देखने हैं, तो ये भी इंटरनेट एडिक्शन में आता है। प्लेइंग ऑनलाइन गेम, कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है आपको, ठीक है, तो ये सब इंटरनेट एडिक्शंस में आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।